बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अमेरिका के अंदर कि एक पाकिस्तानी शख्स, उसका नाम आसिफ मर्चेंट है, उसको न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया और कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के अंदर सियासी लोगों को टारगेट करना चाह रहा था। उसने को $5,000 के करीब कोई रिश्वत भी वहां पे किसी को दी, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता वो निकल रहा था कि इंडियन अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और अक्सर पाकिस्तान इन चीज़ों में सामने आता है और पाकिस्तानी लोग मुलव्वस पाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे हमला हुआ है, हमारे लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? Great, thank you. In the last hour, the Justice Department announced that a Pakistani man with ties to Iran was arrested for a plot to kill former President Trump. This plot was foiled. We're not even a month from the assassination attempt in Pennsylvania. What is the administration's reaction to this? I mean, another assassination attempt. So I'll say this. So we are aware of the indictment that you're mentioning by the DOJ today. Going to be really mindful. I will refer you to DOJ as it's an ongoing law enforcement investigation. I'll add this, that based on DOJ's ongoing investigation, there has been no evidence to suggest that the individual named in today's indictment has any connection to the assassination attempt against former President Trump that happened in Butler, Pennsylvania. But anything else, that is something that I would have to refer to the Department of Justice. What happened? I mean, this alleged plot. Look, we have said many, many times, and I want to be really clear because this is a DOJ, it's an ongoing law enforcement DOJ indictment, so I'm going to be really mindful. But we have said many times that we have been tracking Iranian threats against former politicians. We've been very clear about that. These threats arise from Iran's desire to seek revenge for the killing of Qasem Soleimani. We consider this a national and homeland security matter of the highest priority, the highest priority. We have repeatedly met at the highest levels of our government to develop and implement a comprehensive response to these threats. As part of the comprehensive response, we have invested extraordinary resources in developing additional information about these threats, disrupting individuals involved in these threats, enhancing protective arrangements and potential targets of these threats, engaging with foreign partners, and directly warning Iran. So we've been clear. We have said this for the past several months, for some time now. But as I just stated, we're aware of the indictment announcement today by DOJ. That is something DOJ to speak directly to on the specifics. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। चीमा साहब, इस बंदे ने सत्यानाश करके रख दिया पाकिस्तानी अमेरिकन का। यहाँ पे इसने तसल्ली कर दी। इसने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जैसे लोग जो कि भाग कर यहाँ पे रिफ्यूज लेकर बैठे हैं, जब भी यहाँ पे कोई इस तरह का हादसा होता है, यकीन करें, पिछले 35 साल से हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं कि या मेरे मालिक इसमें कोई पाकिस्तानी ना हो, कोई मुसलमान ना हो। अब मैं ये बिल्कुल, इसने जस्टिफाई किया है कि आपको वाकई यहाँ भी पीटीआई को प्रमोट करना चाहिए, रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी, यू डोंट डिजर्व टू बी इंटीग्रेटेड इनटू दिस सोसाइटी। आसिफ मर्चेंट साहब ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, और मेरे जैसे लोग जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं और जो अमेरिका से भी मोहब्बत करते हैं, जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमेरिका का, जिन्होंने हमें यहां पे संभाला है। इस बंदे ने तसल्ली कर दी है। इस पे जितना भी दुख किया जाए कम है। इस बंदे ने ज्यादती की, इस बंदे ने सख्त। चीमा साहब देखें, और इतने इमेच्योर हैं ये लोग, कितने इमेच्योर लोग हैं कि $5,000 में यार तुम मरवाना चाहते हो या लीडर, या 3 बंदे 3 जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाएं, $5,000 बिल आ जाता है। इतना सस्ता सारा कुछ हो जाना था। इनको ट्रेन करने वाले भी नहीं समझते कि यार इनको इंटरनेट इस्तेमाल करने सिखा दें। मेरे इतने इमेच्योर हैं। और फिर उनसे कह रहा जी कि वो कभी कहता है जॉन बोल्टन को मारो, कभी कहता है किसको मारो, फिर डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूयॉर्क 1 दिन पहले यह पकड़ा गया जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर अटैक हुआ। और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है, पाकिस्तान को मजीद इसने 20-25 साल पीछे धकेल दिया। अब रिलेशनशिप आप कह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के कैसे होंगे, कहां होंगे, वो मैं पहले भी अर्ज करना चाहता हूं चीमा साहब। आपके रिलेशनशिप नीड बेस पे हैं, आपके रिलेशनशिप डॉलर बेस पे हैं। आपको टेररिज्म के लेंस से ही देखा जाता है, पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से ही देखा जाता है। जब भी चाइना को काउंटर करना होता है उसी हवाले से देखा जाता है। आपकी कोई डिप्लोमेसी या आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी के बेस पे आपके रिलेशनशिप दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी नहीं है, छोड़े अमेरिका को।
ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहां पैसों पे गिरते हैं और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं, चाहे वो चाइनीज दे दें, चाहे अमेरिकन दे दें, चाहे कोई रशियन दे दे, जो आपको क्वाटा दे दे, कुछ तेल दे दे, अल्लाह के नाम पे जो दे दे आप उसके साथ चल पड़ते हैं। सारी दुनिया को पता चल चुका है उस पर क्या नुकसान होना है। आसिफ मर्चेंट ने उस फॉरेन पॉलिसी को क्या नुकसान पहुंचाना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसने क्या नुकसान पहुंचाना था आपको। ये उसी लेंस से जिस तरह पहले देख रहे थे टेररिज्म के हवाले से एक अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक रोग स्टेट, उसी तरह देखते रहेंगे। आपको और क्या देखना है इन्होंने। आजकल आप रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि भारत के साथ आइडियल रिलेशनशिप नहीं है। यू आर लवी डवी, $7 बिलियन आएगा, वो दुबई कनाडा चला जाएगा और आप उनके साथ साथ हैं। इससे बड़ा और आसिफ मर्चेंट ने उस पर क्या नुकसान पहुंचाना था। इसने नुकसान तो मेरे जैसे लोगों को पहुंचाया। इसने पीटीआई वाले के वर्कर जहां पे जितना लौंडा लपाड़ा है उनको इसमें क्या नुकसान पहुंचाना है। वो तो पहले ही डिस्कनेक्ट है अमेरिका के साथ, उनको क्या नुकसान होना है। तो चीमा साहब इस बंदे ने बड़ी सख्त ज्यादती की है, चले कोई नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। मैं कल चीमा साहब मैंने कल लर्न एक चीज की, मैं कल उससे बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। कल जब मैं वापस आ रहा था बार्सिलोना से, चीमा साहब मेरे साथ एक सऊदी ट्रैवल कर रहा था। उसने कहा सऊदी अरेबिया के अंदर चीमा साहब हर जो करप्शन इन्वॉल्व केस होता है उसको वहां की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे के हर महीने उसको अनाउंस करती हैं ताकि दूसरी सोसाइटी रिफ्रेन करे, उस तरह के क्राइम कमिट ना करे। मैं एक बहुत छोटा स्टूडेंट हूं लॉ का। जब मैंने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी थी तो पनिशमेंट के पीछे फिलॉसफी होती थी कि सजा इतनी गंभीर होनी चाहिए, इतनी सख्त होनी चाहिए ताकि सोसाइटी का दूसरा बंदा उसको कमिट करने से 2 दफा पहले सोचे। आसिफ मर्चेंट साहब आए हैं, इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। यहां जो पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहां की सेकंड जनरेशन बॉर्न है, जिनका नाम आसिफ होगा, जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनका नाम अहमद होगा, जिनके नाम के साथ पाकिस्तान लगता होगा, बस उनको इसने 20 साल पीछे कर दिया इस बंदे। लेकिन कोई नहीं, किसी को कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। चीमा साहब बस मेरे जैसे बंदे परेशान हैं यहाँ पे कि अब हमने आगे हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड। मुझे अब हर गैदरिंग में किस लेंस से देखा जाएगा। देखे ना, आपका तो रिलेशनशिप भी दुनिया के साथ पैसे का है, मेरा पैसे का रिलेशनशिप नहीं है। मेरा एक सिविलाइज्ड इंसान, ह्यूमन का मेरा रिलेशनशिप इनके साथ। मुझे इन्होंने रिफ्यूज दिया, दिस इज माय कंट्री। आसिफ मर्चेंट साहब तो 5 साल 6 साल जेल काटेंगे, हो सकता है किसी कैदियों के तबादले में वापस अपनी 2 बीवियों के साथ चले जाएं, हो सकता है तीसरी शादी कर लें जाके वहां पे और 6-7 बच्चे और पैदा कर दें। लेकिन मेरे जैसे बंदे को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं दुख के साथ कहूंगा, आई वाज सो सैड टू लिसन टू दिस स्टोरी कि इस बंदे ने मेरी जिंदगी के साथ क्या किया, मेरे बच्चों की जिंदगी के साथ इसने क्या किया। इसने बहुत घिनौना काम किया है। इसको करार वाकई, खैर सजा भी इसको क्या मिलनी है। डेमोक्रेट पार्टी डोंट बिलीव इन इट, सारे लिबरल जज बैठे हैं वहां। आसिफ मर्चेंट सिर्फ ये कह रहे कि मेरा बाप बचपन में मुझे मारता रहा है, मेरा पड़ोसी मुझे सेक्सुअली अब्यूज करता रहा, हो सकता है उसको हीरो बना के वापस भेज दें। तो इनका क्या है चीमा साहब। लेकिन दिस इज नॉट हाउ द सोसाइटी मूव फॉरवर्ड। इस बंदे ने सख्त डैमेज किया है। पाकिस्तान को क्या डैमेज इसने करना था। जो डैमेज उसका होता है जिसके पास कुछ हो, जिनके पास हो कुछ ना, उन्होंने क्या डैमेज करना। लेकिन ज्यादती हुई आपके, देखे ना, आपकी तो प्रोडक्ट है चीमा साहब। पिछले 40-45 साल में आपकी प्रोडक्ट आपने जो तोड़ चढ़ाई है उसका वो हीरो है। दहशतगर्दी आप एक्सपोर्ट, आप देखें ना, आपका ट्रेडमार्क क्या है। आप काटना आपका ट्रेडमार्क थोड़ी है, आपका आईटी आपका ट्रेडमार्क तो नहीं ना, आपका ह्यूमन रिसोर्स तो ट्रेडमार्क नहीं है। आप दुनिया में मशहूर किस चीज के लिए है? दहशतगर्दी के लिए मशहूर है या चीप अनस्किल्ड लेबर, नॉन वर्केबल लेबर की वजह से मशहूर है। अब सऊदी अरेबिया, दुबई आपसे माफिया मांगता फिर रहा है कि खुदा का नाम है, इनको कुछ पढ़ा के भेजा करो। यहाँ पे 50% से ज्यादा जेलों में देखें तो पाकिस्तानी पढ़े दुबई में। सऊदी अरेबिया आप उम्रों और हज के हवाले से अपने जितने भिखारी हैं वो भेज रहे हैं। और मैं चीमा साहब खुद जाता हूं, शर्मिंदा होता हूं। हरम शरीफ से निकले तो हर गेट के सामने 15-15, 20-20 खड़े हैं, मांग रहे हैं। मस्जिद नबवी के अंदर भी मांग रहे हैं, बाहर भी मांग रहे हैं। तो दुनिया बाप से माफिया मांगती फिर रही है। आप पता नहीं किस जगह फिर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। डेली बेस पे खबरें आ रही हैं कि आपका सेटअप वाइंड अप हो रहा है, 2 महीने में गवर्नमेंट खत्म होगी, 3 महीने में, सारा दिन डेली बेस पे डिस्कस किया जा रहा है, घंटे गिने जा रहे हैं।